शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna. So, welcome everyone. So this is our regular Bhagavad Gita session that we are doing, but we also have many new, joiners today. So I welcome all of you. I'll give you a brief introduction about myself. Okay, some of you might already be knowing it, but just for the sake of others, just to give you a brief introduction. So my name is Uday Samnankar, and my initiated name is Ugra Narasimha Das. So that's the name by which I am known in the devotee community. Okay, that's my initiated name, Ugra Narasimha Das. In terms of my academic career, I am an engineer by profession. I have done my mechanical engineering. Okay, passed out in 1999. Okay, since then I am working for an IT organization. Okay, I have worked with all big organizations like TCS, Infosys. Currently working with the world's #2 bank, which is Hong Kong Shanghai Bank. Okay, I manage their infrastructure division entirely over there. So this is like in a nutshell of my career that I'm going through right now. In terms of my spiritual journey, I came across spirituality in the year 2001. So since then I am practicing Krishna consciousness. So from 2001 I am doing this Krishna consciousness. I came across not in India but outside India, and that's where I accepted Krishna consciousness. From there I have been studying and preaching both actually. I am a student of spirituality, and just like you all are also a students of spirituality. So just with our mutual exchange, I think we can try to learn more and more about Bhagavad Gita. Now, how we do this class is, we have selected 108 Bhagavad Gita shlokas, and every Sunday we discuss on one shloka of Bhagavad Gita. Okay, only on one shloka. Sometimes it's 1 or 2 shlokas, but that's what we do. Every Sunday when we come, we recite the shlokas that we have discussed earlier also. सिर्फ श्लोकास हम लोग संस्कृत में रिसाइट करते हैं,
Today, unfortunately, because I'm not able to project it, I actually had it over here, and I know some of you might not have your Bhagavad Gita copies, so please excuse me for that. But next time I think we'll do it better. So we will recite the shlokas because Sanskrit recitation is very good, both for the brain as the same time it's very purifying. The prayers we chanted just right now, those prayers are to thank our entire, you can say, parampara or the teachers of spirituality right from God. So jaise last time I talked about it, that in US or the Western world they have a festival called as Thanksgiving festival. तो ये थैंक्सगिविंग फेस्टिवल में दे you thank someone, you want to thank someone, that is the day they go and thank. We chant these prayers every day, we thank our teachers every day, we don't need any separate festival for it, so we do it every day, Thanksgiving. So this is true Thanksgiving, every morning we wake up, right from God to everyone who has made a difference in our life, we thank them, and these are the prayers through which we invoke that thankfulness. Okay, so that is what those prayers were. In Sanskrit we call them as Mangalacharan, that which brings auspiciousness. Mangalacharan, Mangal karta hai life mein. Okay, now we will recite the Bhagavad Gita shlokas. Okay. Which link? Oh, perfect. Okay, that's great. So you can open that link on mobile if you have. आपके पास है book, so don't look. इनके पास भगवद गीता है, use भगवद गीता only. You got it? Okay. So the first verse we are going to recite. Dhritarashtra uvacha. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया. The next one is second chapter, 7th shloka. कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेत यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. Chapter 2, text number 11. Shri Bhagavan Uvacha Ashocam Manvasocastvam Pragyavadamscha bhashase Gatasum agatasum cha Nanusoshanti pandita. Text number 12 of second chapter. Natva eham jatu nasam Natvam neme janadipa Na chaiva na bhavishyama Sarva vayam mata param. Text number 13. Dehinosmin yata dehe Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantara praptir Dhiras tatra namuyati. Text number 14. Matra sparshastu kaunteya Sitoshna sukha dukkada Agama paino nityascha Stam titikshva svabharata.
टेक्स्ट नंबर 20. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर. टेक्स्ट नंबर 22. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. So last time we studied till this shloka, okay? Now today we are going to take a separate topic but based on Bhagavad Gita, okay? So we are going to discuss on text number 17 of chapter number 6, okay? Bhagavad Gita chapter number 6, and if you go to text number 17, so you all can recite behind me. Yukta ahara viharascha yukta chetasa karmasu yukta swapna abodhasya yoga bhavanti dukkhaha. So this shloka, it talks about yukta ahar. Okay, yukta means controlled. Okay, this word yukta means controlled. So yukta ahar, then vihar is ahar is clear, ahar khana. Okay, so controlled eating. Yukta vihar means bahar ghumna, enjoyment, vihar. Okay, yukta chetasa. Okay, chetasa is basically work. गधे जैसे जो हम लोग काम करते हैं, सो इन अ कंट्रोल्ड मैनर, वर्किंग, ओके. एंड देन युक्त आहार युक्त चेतसा कर्मसु युक्त, देन स्वप्न अबोधस्य. ओके, स्वप्न अबोधस्य इज स्वप्न इज स्लीप, कंट्रोल्ड स्लीप, एंड अबोधस्य इज वेकिंग अप. मतलब ज्यादा जागना नहीं, जागना इन द सेंस सम पीपल नाइट आउट्स करते हैं, सो दैट इज कंट्रोल्ड. या ज्यादा सम पीपल स्लीप फॉर 14 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स, सो लाइक दैट. सो नॉट मोर स्लीप, नॉट मोर वेकिंग अप. ओके, योग भवति दुःखः. इफ समवन कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, then he will be able to practice yoga, and ऐसे योगा से क्या होगा कि उसके लाइफ में दुख नहीं होगा. There won't be miseries. Okay. Now this is the shloka from Bhagavad Gita. Now I'm going to stand. So this is the shloka from Bhagavad Gita. Okay. अब this is the beauty of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में जो श्लोक है, they are like sutras. You know what is sutra? Sutras in English. Sutra means formulas, right? जैसे हम लोगों को साइंस में सिखाया गया था, फेमस फॉर्मूला E is equal to mc square, वेरी फेमस फॉर्मूला आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, E is equal to mc square. बस हमने भी रट लिया साइंस में और हम लोग यूज करते जा रहे, लेकिन किस लिए कर रहे पता नहीं है. बट दैट फॉर्मूला इज सो पावरफुल फॉर्मूला दैट उसके बेसिस पे पूरा न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, इट्स बेस्ड ओनली ऑन दैट वन फॉर्मूला, राइट. सिमिलरली भगवद गीता का एवरी श्लोका इज अ पावरफुल सूत्र इन इटसेल्फ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. जब तक नहीं समझेंगे देन वी विल जस्ट ट्रीट इट लाइक अ श्लोका. जैसे हम लोग एकेडमिक स्टूडेंट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एग्जाम में आया, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज डाल दिया, आंसर आ गया, बस मार्क्स तो मिल जाते लेकिन पता नहीं चलता क्यों यूज किया था फॉर्मूला.
it's that kind of thing. So Bhagavad Gita also has to be understood in a practical manner. Now this principle of yukta or controlling, okay, we are going to discuss this today. Now I don't know how many of you have a problem, but I have a problem, in my life about procrastination. Okay, आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? Okay, and rest all are working professionals? Perfect. Okay, so now I'll do some whiteboarding. Okay. Okay, so I'll explain you my problem statement. I'm audible? Do I need a mic? No. Okay, I'll explain my problem statement. So in my college days and even now, I face a similar problem. Hopefully you can relate it. If I am being given any activity, कि भैया तुमको एक ऐसे लिखना है, या फिर मान लो तुमको कोई प्रोग्राम लिखना है या कुछ वर्क करना है, एंड आई हैव बीन टोल्ड कि यू हैव 1 month टू कंप्लीट इट, 4 weeks, 4 हफ्ते का टाइम दिया है मुझे. सो मेरा ब्रेन क्या करता है? माई ब्रेन इमीडिएटली स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग. बोलता है कि वेरी गुड, प्रोग्राम है, ओके, एंड प्रोग्राम में मान लो मेरे पास 1000 लाइन्स का कोड लिखना है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. या 1000 लाइन्स का ऐसे जो भी आप काम कर रहे हो वो डाल सकते हो. तो मैं बोलता हूँ कि चलो week 1, week 2, week 3, week 4, ऐसा करके मैंने बोला कि चलो 250 लाइन में कर दूंगा. ओके, सिंपल एकदम, परफेक्टली प्लानिंग. नाउ I realized when I started actually working on it, okay, rather because I had 4 weeks, I did not work on it, okay. So ये जब week 2 का मंडे चालू हो गया, I realized कि इधर मैंने 0 ये किया है. So then I thought no problem, I am still a mathematics person. So मैंने recalculate किया. So I said no, इधर 33%. 25% की जगह मैं बोला 33% करूंगा तो 3 हफ्ते में हो जाएगा. बट जब ये मंडे आ गया, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, सो आई थॉट और 2 हफ्ते हैं तो इधर भी 0% आया. देन आई सेड नो प्रॉब्लम, आई वेंट टू 50% एंड फाइनली जब आखिरी वीक बचा था, आई रियलाइज यहाँ पर भी 0% था एंड एवरीथिंग नाउ कम्स ओवर हियर. ये आप लोगों के साथ हुआ इंजीनियरिंग में कभी? स्पेशली विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पे ऐसे हम लोग बैठते थे, फिर जीटी करो, फिर इसका जर्नल कॉपी करो, वैसे सिर्फ छापा करते थे. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज आई वेंट टू माय प्रोफेसर विद माय जर्नल, वो एक्सपेरिमेंट्स का ये लेके, एंड सर ने वो जर्नल देखा और सब फेंक दिया. मैं बोला सर कंप्लीट किया है सर, क्यों फेंका? बोले ये एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है. मैं बोला नहीं सर करेक्ट है सर, वैल्यूज देखो, आंसर आया, ये आया वो आया. बोले नहीं ये एक्सपेरिमेंट रॉन्ग. मैं बोला कैसे, क्यों सर? बोले ये apparatus लैब से इस साल है ही नहीं, तुम्हारे इसमें कैसे आ गया? क्योंकि पिछले साल देखा, देख के छाप दिया था ना. So it's like that. So this is what ends up because of procrastination, that you don't plan perfectly and एकदम लास्ट मोमेंट पे ये सब होता है. Does this happen with all of you? I mean in our day-to-day activities also ऐसा होता है आप लोगों के साथ. Okay? Now जब ये एक्टिविटी हुआ, so that time one of my friends told me कि यार ये अपने सबके साथ ऐसा होता है, so can we scan our brain? ऐसा क्या है? Because there were some studious student in my class जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं था. There were some fellows जिनके साथ ये प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ था, बैक बेंचर्स. So then we scanned our brain. और जब हमने ब्रेन स्कैन किया तो जब MRI निकला हमारे ब्रेन का,
ऐसा ऐसा कुछ तो ब्रेन दिखता है अपना। एंड ये ब्रेन में जब एमआरआई निकला तो उस एमआरआई में वी फाउंड दैट देयर वाज दिस वन पर्सन। डॉक्टर ने बोला कि दिस पर्सन जो है तुम्हारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है एंड ही इज कॉल्ड एज द रैशनल थिंकर। रैशनल थिंकर, व्हाट डज रैशनल थिंकर डू? रैशनल थिंकर ये इट इज दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कि जब भी हमको कोई काम असाइन किया जाता है इमीडिएटली वो कैलकुलेट करता है कि ओके दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू, देन इसको ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यू नो वो पूरा परफेक्ट प्लानिंग करता है। दैट इज द रैशनल थिंकर। एंड द डॉक्टर से इट्स नॉर्मल, हर एक के ब्रेन में होता है ये रैशनल थिंकर। सो सबके ब्रेन में होता है, एवरीवन प्लान्स इट। देन आई सेड डॉक्टर देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद माय ब्रेन? यू नो अगर मेरे इसमें रैशनल थिंकर है तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो उसने जब फर्दर स्कैन किया तो बोला कि अरे यू नो देयर इज वन मंकी सिटिंग इन योर ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी। सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी। ये सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन और आवर माइंड, रादर इसको माइंड ही बोलना चाहिए, जो जब भी हम लोग कुछ सीरियस करने को बैठते हैं तो ये मंकी जाग जाता है। और मंकी क्या करेगा? वो बोलेगा अरे तो देखा नया मूवी रिलीज हो रहा है या नया वेब सीरीज आया है, यू नो देखेंगे नहीं, सिर्फ उसका ये रिव्यू पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं, लेट्स जस्ट रीड द रिव्यू। उधर से शुरू करता है मंकी। फिर वो यू नो रिव्यू से जो चालू होता है, वी एंड अप वॉचिंग द सीरीज एंड राइटिंग रिव्यूज। वहां तक वो मंकी लेके जाता है तुमको। इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी होता है ये। तो ये मंकी का काम एक ही होता है, ये रैशनल थिंकर ने जो प्लानिंग किया है ना उससे डाइवर्ट करने का काम ये दिस सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी डज। दैट इज द ओनली थिंग दैट ही डज एंड यू विल सी एवरी एस्पेक्ट में। आप लोगों ने देखा है कभी कुछ काम करने के लिए लैपटॉप खोला है एंड वर्क के लिए यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द वेब, देन ऑल ऑफ अ सडन कोई लिंक आ जाता है बीच में, देन यू क्लिक ऑन दैट लिंक, फिर वो लिंक पे जाते, फिर उधर से उधर, उधर से उधर, उधर, फिर काम बाजू में रहता है। यूट्यूब पे गए, यू नो सर्चिंग फॉर समथिंग एंड देन यू फाइंड अरे ये एक नया प्रोडक्ट आया है, ये आया है, वो है। सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी। ओके, सो सो सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी है ये। यहां तक क्लियर है? यू ऑल आर विथ मी? नाउ आई टोल्ड द डॉक्टर, बट यू नो व्हाट, इवन दो यू से देयर इज दिस सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी जो मुझे डाइवर्ट करता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई डिलीवर्ड। मुझे बोला गया था कि डिलीवर द वर्क ऑन द 4th वीक एंड आई डिलीवर्ड माय वर्क। सो इट्स नॉट दैट यू नो द सेंस ग्रेटिफाइंग मंकी ने मुझे स्टॉप किया। तो तब डॉक्टर ने बोला कि भैया मैं तेरे ब्रेन में और एक पर्सन को देखा है एंड दैट पर्सन वो होता है पैनिक मॉन्स्टर, जो पैनिक करता है। ये पैनिक मॉन्स्टर वो होता है जो हमको जगाता है, यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम पे मंकी ने बोला कि चल थिएटर में जाते हैं, अच्छा मूवी आया है, फिर यू नो आराम से पढ़ाई कर लेंगे, अभी मन नहीं लग रहा है, जाके पढ़ाई करेंगे। नाउ व्हेन यू आर वाचिंग इन द थिएटर, देन देयर इज दैट पार्ट ऑफ योर माइंड बोलता है शर्म आ रही है, एग्जाम सर पे है, यू नो यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस टॉपिक्स, दिस दैट्स दिस पैनिक मॉन्स्टर। ये हमेशा याद दिलाता रहता है। And this monkey is scared of the panic monster. तो जैसे panic monster जाग जाता है, this fellow runs away and this panic monster then makes us meet the timelines. Okay, this is how the cycle works. Okay, see I have just used these analogies, but I mean if you look at the psychology part of it, अपने लाइफ में साइकोलॉजी ऐसे चलता है। काम मिलने पे the first thing we do is planning. हो जाता है प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि वी डोंट प्लान, वी प्लान। ओके, सब माइंड में रहता है या कुछ लोग पेपर पे भी लिखते हैं, बट जैसे ही प्लान आता है, डेडलाइन का एक डेट होता है,
The problem comes is there is a monkey over there. The monkey अपने को divert करता है. When the monkey diverts and when the deadline appears very close, this fellow comes into picture. Okay, these are the three players who are playing the entire game. Now our focus should be how we give control back to this fellow. The whole purpose of self management or self discipline is giving control back to this person. ठीक है, तो इतना क्लियर है, तो आई एम गोइंग टू गो फर्दर. Now second thing that we should understand in life is developing a right mindset. Developing a right mindset. See, I'm going to talk about few concepts. फिर इन सबको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. ओके, राइट नाउ यू माइट नॉट गेट हेड और टेल ऑफ ईच ऑफ देम. We'll talk about them separately and then we will integrate. Okay, so we talked about these three characters. अभी टाइम बिंग के लिए इन तीन कैरेक्टर्स को भूल जाओ. Now we are going to talk about mindset. Okay, now in life there are two types of games that we play. When I say games, not actual games, but अगर लाइफ में जो अप्रोच हम लोग जिसको बोलते हैं, okay, and if we call any work as a game, then we can say there are two games that we play, two types of games. Okay, one is a finite game and the other is a infinite game. Okay, finite game and infinite game. फर्क क्या है? finite game वो होता है जिसमें टाइमलाइंस होते हैं. infinite game वो होता है जिसमें टाइमलाइंस नहीं होते हैं. फाइनाइट गेम वो है जिसमें रूल्स डिसाइडेड है, इसके ऐसे ही चलेगा. इनफाइनाइट गेम वो है जिसमें रूल्स डिसाइडेड नहीं है. फाइनाइट गेम वो है जिसमें प्लेयर्स मुझे पता है. इनफाइनाइट गेम वो है जिसमें मुझे प्लेयर्स पता नहीं है. ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ गेम्स दैट टिपिकली वी प्ले. क्लियर? ओके, नाउ व्हाई it is necessary for us to understand which game we are playing, whether we are playing a finite game or an infinite game. That is what we have to understand. Now if you see, say for example, अब मान लो क्रिकेट मैच होता है. क्रिकेट मैच में when इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मान लो इंडिया हार गया या पाकिस्तान हार गया, तो आइदर इधर का फैन या उधर का फैन इन द सेंस, नॉट दिस फैन, द स्पेक्टेटर, दे कमिट सुसाइड्स और दे कमिट सम वायलेंस और दे कमिट सम प्रॉब्लम, राइट? व्हाई? बिकॉज दे लुक एट दैट गेम एज अ फाइनाइट गेम, कि आज की हार मतलब मेरे देश की हार, दैट्स इट. फाइनाइट देख लिया. कभी देखा इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद प्लेयर ने सुसाइड कमिट किया है? कभी नहीं होता है. Because player understand that this is not a finite game, this is an infinite game. एक मैच खत्म हो गया, दूसरा मैच चलेगा, right? So they don't see it as a small distance. They see it's a continual process. They see it as a continual process, which is very important. It's very, very important. See, if you study the life of Lionel Messi, okay? Because why I talk about Lionel Messi is because recently they won the football World Cup, right? Argentina won the football World Cup. अगर उसके लाइफ अगर आप स्टडी करोगे, that fellow went through so much reverses in life, step to step. So many times he went through reverses in life. He should have committed suicide so many times if he would have played that game as a finite game. If he would have played the game as a फोन आया है किसी का, आप देख लो. If he would have played it as a finite game, तो क्या होता कि he would have easily given up. But when you played as a infinite game, then you know that I always have the opportunity to bounce back. I always have the opportunity to bounce back. People who have the mentality of finite mindset जिनका mentality होता है,
दे आर ऑलवेज इन द मूड कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, इसके लिए मेरा ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है. दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट. जो इनफाइनाइट माइंडसेट में होता है, दे डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन. व्हाट दे वरी अबाउट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट. सी आई एम अगेन टेलिंग यू, फाइनाइट माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि आई जस्ट वांट टू बी बेटर देन peers around me. You know, this is unfortunately our education system. Our education system only teaches us that how I can be better than this. You know, the percentile concept क्या है? Percentile concept is where how much more I have as compared to others. भले मुझे 50% मिले हैं, and बाकी you know the student becomes happy because मुझे 50 मिलेंगे, उसको 49 मिले. You know, in my college days I remember second year I went from diploma to engineering, so we were very weak in maths M3. खासकर सिखाया नहीं था ना डिप्लोमा में, we never had it. 11th 12th नहीं हुआ था M3. और जैसे ही गए लेट एडमिशंस था, by the time एग्जाम आ गया तो सब फेल. you know, पहला वाला जो बाहर आया उसको बहुत बुरा लगा, यार रिजल्ट लेके फेल हो गया मैं. you know, दूसरा पर्सन आया, मैं भी गया, फिर थोड़ा अच्छा लगा. तीसरा आया, सब लोग जब फेल हो गए, देन वी वर सो हैप्पी एक्चुअली, वी वर सेलिब्रेटिंग एक्चुअली दैट टाइम. यू नो, वी ऑल फेल. यू नो, सो दैट रिलेटिविटी, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स. यू नो, दैट इज अ फाइनाइट माइंडसेट. दैट इज नॉट, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर. दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर इन लाइफ. इनफाइनाइट माइंडसेट क्या होता है? इनफाइनाइट माइंडसेट इज how I will be better version of myself tomorrow. That is infinite mindset. I am not going to compare with anyone else. I don't want to compare with anyone else. I just want to be better of myself. I just want to be a better version of myself. You know, finite mindset में क्या होता है? अगर आप देखोगे कि let's take you know, thriving companies in the year 2004-5, which were the most famous mobile companies. याद है क्या किसी को? पता है किसी को? Nokia और BlackBerry और Motorola और Samsung. These four were there, right? So they competed with each other. नोकिया नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो मोटोरोला देखेगा, मोटोरोला लॉन्च करेगा तो ये देखेगा. दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट द पीपल विथ फाइनाइट माइंडसेट. दे गेट बीटन अप विथ अ अननोन कॉम्पिटिटर. एंड हु वाज दैट? एप्पल. व्हेन एप्पल केम, दे ऑल वर थ्रोन अवे. सम ऑफ देम गॉट शट आल्सो, राइट? मोटोरोला बंद हो गया, नोकिया बंद हो गया, यू नो, ब्लैकबेरी बंद हो गया, राइट? एक सैमसंग बचा. यू नो, इट्स लाइक दैट. सो तुम जब फाइनाइट माइंडसेट से गेम खेलते हो लाइफ का, तो तुमको पता ही नहीं, क्योंकि फाइनाइट माइंडसेट में टेंडेंसी क्या होता है? हम सिर्फ पीयर्स को देखते रहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर ये है, ये है, ये है. बट देयर इज समवन एल्स हु इज सिटिंग ओवर देयर whom you don't even plan for. And because मैं सिर्फ कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ? मेरा कंपटीशन इतना कर रहा है ना, मैं इससे थोड़ा ज्यादा करूंगा. इतना कर रहा है ना ये. वो जो उधर बैठा है ना, वो ही इज थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. ही इज थिंकिंग कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स. एंड मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई ही बीट्स मी अप, राइट? सो अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट गेम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. Finite mindset, see, it is needed. It's not that finite mindset is not needed, but finite mindset is needed in phases. But the game that we play is an infinite mindset. Infinite mindset क्या होता है? Infinite mindset और infinite game is that game जिसमें कोई deadline नहीं होता है, जिसमें कोई any activity in your life which has no deadline is a infinite game. Okay? Finite, infinite clear हुआ क्या? Is this clear? Conceptually clear हो गया? What is finite? What is infinite? Any questions मेरे को अभी पूछ लो, because we are going to connect now this and the previous one. Up till now this is clear? ठीक है. Now previously we discussed about the panic monster, है ना? मैंने क्या बोला कि I am able to deliver. I am able to deliver because that panic monster woke up. वो जाग गया. नहीं तो मंकी मेरे को घुमा रहा था. He was just moving me left and right. वो मुझे he had taken me for a ride.
But the moment deadline came, panic monster woke up, right? When what came? Deadline came, panic monster, and I say I am playing an infinite game. So where is the deadline? And if there is no deadline, what happens to the panic monster? So jayega. And when he sleeps, the problem aggravates. And when the problem aggravates, we go in depression. And when we go in depression, people take drastic steps in their lives. This is what we see in our education system. This is what we see in careers. People think, agar if I am not able to score so many marks, I am a failure. And they think it that way and they commit suicides. What's happening in Kota today? Same thing, students, of course there are some students because of harassment and all those things, but there are many students because of pressure they do it, right? Even in IT companies, people are jumping from their queue because they are not able to make the earnings. They are thinking ki bhaiya, if I am not able to match this level, finish, itna depression mein jata, because they don't understand that life is not a finite game, life is an infinite game. Coffee Cafe Day का जो CEO था, who committed suicide, you know how much wealth he left when he committed suicide? He had 3,000 crores. 3,000 crores था उसके अकाउंट में, cash reserve. cash reserve. It's not even assets. 3,000 crores होने के बाद भी ये person suicide commit करता है. Why? Because according to him the business had failed. He was not able to repay whatever those loans and all those things था. He committed suicide over there. What he thought is, at this moment I am dead. मतलब I can't meet them. He committed suicide. 3,000 crores यार, अगर मेरे को कोई देगा तो खत्म. मैं तो कहीं बाहर ही ना जाऊँ, बस उसके इंटरेस्ट पे ही अपना जीना. People don't understand life is meant for much more things. I'll tell you my real life incident with one of my friends. In my diploma, when I did my mechanical engineering diploma, I had this friend of mine, and I can take his name also. His name was Amit Shah. Okay, fantastic person actually. I really look up to him. So this guy. May I request you please speak in Hindi? अच्छा हिंदी में बात करो Please, I don't understand. ओके. कुछ चीजें मेरे को लेकिन इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा. ओके. तो ये जो पर्सन है वो उसके 10वीं में ही फेल हो गया था. ईयर डाउन. 10वीं में ही ये फेल हो गया था. ईयर डाउन हो गया था. ही अपीयर्ड अगेन इज 10th स्टैंडर्ड. फिर किसी तरह से थोड़ा बहुत मार्क्स मिल गया. वो मार्क्स से उसने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया था. ओके. लेकिन वो पर्सन हमारे डिप्लोमा में ऑल महाराष्ट्र टॉप किया था. नंबर 1. ही टॉप द एंटायर महाराष्ट्र. उसके बाद में वो जब टॉप किया तो उसके बाद में मैं उसको पूछा कि अभी डिग्री में अपने को जाना है, तो ही सेड उदय मैं ब्रेक ले रहा हूँ, व्हाटएवर फॉर फाइनेंशियल रीजंस एंड ऑल दोस. ही टुक अ ब्रेक. उसने ब्रेक ले लिया. 1 साल का ब्रेक लेने के बाद वापस उसने इंजीनियरिंग में लिया. ही गॉट इनटू द टॉप कॉलेज एंड उधर जाने के बाद अगेन ही टॉप यूनिवर्सिटी. इमेजिन दिस पर्सन, ये व्यक्ति जो फेल हो चुका था 10th स्टैंडर्ड में, ही बाउंस्ड बैक. आई एम टेलिंग यू, अपना जो लाइफ है, इट ऑलवेज गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक. इट ऑलवेज गिव्स यू द लाइफ अपॉर्चुनिटी टू अस टू बाउंस बैक. सो लाइफ को कभी फाइनाइट गेम तरीके से खेलो ही मत. डोंट लुक एट लाइफ एज अ फाइनाइट थिंग. देयर इज ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन बाउंस बैक. हमेशा आप बाउंस बैक कर सकते हो. अच्छा, अब नाउ फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद अब ये समझते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफ जो है ये इनफाइनाइट गेम है, तो ये इनफाइनाइट गेम कैसे है. ओके. सो हमारे लाइफ में वी से देयर आर 5 क्या बोलते हैं, बॉल्स दैट वी हैव. कांच के या बॉल्स है जिनको हमको लाइफ में जगल करना पड़ता है. एक है वर्क या प्रोफेशन, ये एक गेंद है. दूसरी गेंद है हेल्थ.
तीसरी गेंद है फ्रेंड्स। चौथी गेंद है फैमिली एंड फिफ्थ इज स्पिरिट। आई डोंट नो इसके अलावा भी अगर आपके लाइफ में कुछ और है, बट मेरे ख्याल से दिस कवर्स एवरीथिंग। Spiritual. हाँ वही स्पिरिट, वो स्पिरिट लास्ट स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट। ओके, अब आप देखो इसमें से किसमें डेडलाइंस है। हेल्थ में कोई डेडलाइन होता है क्या लाइफ में? अगर मैं इफ आई डिसाइड दैट आई वांट टू इंप्रूव माय हेल्थ, किसी ने डेडलाइन देके रखा है मुझे? नहीं दिया है। सो इफ आई डोंट हैव डिसिप्लिन, क्या होगा? मेरा मॉन्स्टर जागेगा ही नहीं। जब नहीं जागेगा तो आई विल नेवर टेक केयर ऑफ दिस। फ्रेंड्स, डू वी हैव एनी डेडलाइंस गिवन बाय आवर फ्रेंड्स सेइंग यार मेरे साथ तू रिलेशन बनाए रख, यू नो, लेट्स हैव अ गुड हेल्दी रिलेशन, ये वो? नो डेडलाइंस। फैमिली, नो डेडलाइंस। स्पिरिचुअलिटी, नो डेडलाइंस, राइट? तो वर्क को एक अगर छोड़ दिया, इसके अलावा ये जो चार है, दिस ऑल आर क्या बोलते हैं, कांच के बॉल्स हैं। एंड इनको जब जगल कर रहे हैं, इनमें से अगर एक भी नीचे गिर जाएगा तो इसका स्क्रैच कभी भर नहीं पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू रिपेयर दैट स्क्रैच, यू नो। Recently, you know this Rakesh Jhunjhunwala, he died. You know how much wealth Rakesh Jhunjhunwala has? More than 57,000 crores. More than 57,000. He's considered as the Warren Buffett. उसको इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला को, राइट? राकेश झुनझुनवाला अगर कोई शेयर बाय करता था तो उसके कुछ घंटों में ही वो शेयर इट लिटरली यूज्ड टू डबल अप, जस्ट बिकॉज उसने इसमें इन्वेस्ट किया। मतलब पूरा भारत उसमें इन्वेस्ट करना चालू करता था। और राकेश झुनझुनवाला का ये स्टेटमेंट है, ही सेज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव डन इन माय लाइफ इज माय ओन हेल्थ। यू कैन रीड, आप गूगल पे जाके सर्च करो राकेश झुनझुनवाला का ये कोट। ही सेज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड इन माय लाइफ इज द हेल्थ। ये बॉल उसने नीचे गिरा दिया, क्या हो गया? Now family and relatives will enjoy that 57,000 crores, right? So my friends, again understand infinite game. ये पूरा infinite है, this is all infinite and इसमें से you can always bounce back. वर्क में आज you know कुछ प्रॉब्लम आ गया, you can bounce back in life. आप देखो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो है, दे ऑल, उन सबके लाइफ में वर्क में देखो क्या फेलियर्स उन्होंने ये किया है, राइट? यू सी दिस स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का अगर आपने यू नो राइट, स्टीव जॉब्स पता है ना सबको, एप्पल का सीईओ, राइट? स्टीव जॉब्स का अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे, उसको उसी के कंपनी से निकाल दिया गया था। जो कंपनी स्टीव जॉब्स ने चालू किया था एप्पल, ही वाज थ्रोन आउट फ्रॉम दैट हिज ओन कंपनी। अब इमेजिन करो, इतना डिप्रेशन में जाने के बाद कौन व्यक्ति बाउंस बैक करेगा? लेकिन इसने क्या किया? He took it as an opportunity to start a new company called Pixar. और पिक्सार उसने जब चालू किया, वो पिक्सार का इतना जबरदस्त एनिमेशन था। द फर्स्ट मूवी क्या टॉय स्टोरी, टॉय स्टोरी वाज द फर्स्ट मूवी दैट केम अप फ्रॉम हिज कंपनी। व्हेन टॉय स्टोरी केम अप, everyone started looking at that company. That company was bought by Apple. Because वो company Apple ने खरीद लिया, this guy again came on the board of directors and then he got back into Apple and then he again became the CEO. Work will always give you the opportunity to bounce back. This will not. This will not. इसीलिए हमको समझना है कि how do I plan my life to play these games. Okay? प्लीज अंडरस्टैंड, हेल्थ फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट गेम है। इनफाइनाइट गेम, इनफाइनाइट गेम मतलब क्या? मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट डिसिप्लिन तो मैं इनको आई कांट टेक केयर ऑफ दिस। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब यही है। इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अनदर कंसेप्ट। सी वी आर गोइंग, हम लोग मल्टीपल कंसेप्ट्स ये करेंगे, तो उसके बाद में हम लोग इसको प्रॉपरली आप
का जो चार्ट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का चार्ट है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कंपाउंड इफेक्ट. सुना है किसी ने कंपाउंड इफेक्ट के बारे में? एनीवन हर्ड? आइंस्टाइन सेड द एथ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कंपाउंड इफेक्ट. आइंस्टाइन सेड दिस. यू नो व्हाई एथ वंडर कंपाउंड इफेक्ट है? एक बार एक स्टोरी है, तेनालीरामा और कृष्णदेवराया, उनका स्टोरी है. कृष्णदेवराया का जो कॉम्पिटिटर किंग था, कंपटीशन में काफी वेल्दी था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत बहुत बहुत. उसने सुना था कि ये जो तेनालीरामा है ये बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्टर है कृष्णदेवराया के किंगडम में. तो उसने कृष्णदेवराया को एक बार अपने क्या बोलते हैं उसको, इंडेट कर लिया था, उसके ऊपर कोई मेहरबानी किया था. तो जिसकी वजह से कृष्णदेवराया ने कहा कि आपको जो चाहिए मांग लो. तो तब ये राजा ने कहा कि मैं तेनालीरामा को खरीदना चाहता हूँ. आई विल बाय तेनालीरामा फ्रॉम यू. तुम मुझे बताओ कितना धन चाहिए तुमको. कृष्णदेवराया को बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन आई गिव तेनालीरामा, वो तो मेरा लाइफ से भी ज्यादा ये है, द मोस्ट इंटेलिजेंट. तो कृष्णदेवराया ने तेनालीरामा को ही बोला कि तेनालीरामा अभी तू ही कुछ सोल्यूशन निकाल इसमें. तेनालीरामा से नो प्रॉब्लम, आप मेरा और किंग का मीटिंग करवाओ, मैं उसको समझा देता हूँ. तो तेनालीरामा गया राजा के पास. राजा बोला तेनालीरामा आप कीमत बताओ, मैं उतना कीमत पे करके, आई हैव सो मच वेल्थ, मैं कीमत देके आई विल पे यू ऑफ. तेनालीरामा से राजा यू आर सो रिच, आई डोंट वांट लॉट ऑफ वेल्थ. ही सेड सिंपल, ही सेड क्या है ना, आप मेरे को यू गिव मी गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन. और उसने कंडीशन डाला. क्या कंडीशन डाला? उसने बोला चेस बोर्ड होता है, यू सीन चेस बोर्ड, कितना स्क्वायर्स होता है चेस बोर्ड में? 64 स्क्वायर्स होता है. बोला 64 स्क्वायर वाला चेस बोर्ड ले लो और उस पे गोल्ड कॉइन रखो. कंडीशन सिर्फ इतना है कि पहले स्क्वायर में जितना रखोगे उसका डबल सेकंड स्क्वायर में डालना है आपको. और 64 स्क्वायर्स में जितना बैठेगा ना उतना गोल्ड आप कृष्णदेवराया को ले दो. राजा से ले बस 64 स्क्वायर्स में जितना बैठेगा उतना. He started putting, पहले में 1, दूसरे में 2, 4, 8, 16, 32. Now after that you come to the 64 square. ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड में भी इतने जीरोस नहीं बैठेंगे, उतना वो नंबर होता है. हाँ, so that is the number that comes over there. That is compound effect. इसको कहते हैं compound effect. The beauty of compound effect क्या है? When you start applying it, वो ज्यादा नहीं लगता है, उसका end result ज्यादा होता है. That is the beauty of compound effect. इसलिए compound effect के बारे में इतना बात किया जाता है. अब compound effect को अपने लाइफ में we'll talk about it. Okay? We'll talk about it in our life. Imagine every 1 week हम लोग अपने लाइफ में 2% इंप्रूवमेंट दिखाते हैं. 2%. मतलब मान लो पहले वीक में, एक वीक में मैं मान लो 100 रुपया खर्च करता हूं. तो दूसरे वीक में मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि नहीं यार, मैं ज्यादा से ज्यादा 98 रुपीज खर्च करूंगा, 2 रुपया मैं बचा के रखूंगा. इज इट डिफिकल्ट? 2% ऑफ माई प्रीवियस वीक. 2% ऑफ माई प्रीवियस वीक. ये पैसे के मामले में हो गया. अगर मान लो आपका हेल्थ की बात आता है, तो हेल्थ में आप मान लो आप रोज 10 डिप्स कर रहे हो या आई डोंट नो व्हाटएवर 10 मिनट कार्डियो कर रहे हो, तो आप बोलोगे नेक्स्ट वीक में 2% एक्स्ट्रा. कितना करूंगा? 12 मिनट, है ना? 10 का 12 मिनट. इज इट डिफिकल्ट? नॉट डिफिकल्ट. सो एवरी वीक का, प्रीवियस वीक का मैं 2% इंप्रूवमेंट दिखाऊंगा. एवरी वीक का 2% इंप्रूवमेंट. साल में कितना वीक्स होता है? 56 या 54, जो भी है. 52, हाँ जो भी है. मैं बिलिंग में 52 56 डालता हूँ. ठीक है, 52. ठीक है, 2 into 52 कितना हो गया? 104. एक साल में मेरा इंप्रूवमेंट कितना हो गया? 104%. मतलब आई हैव डबल्ड. ये इंप्रूवमेंट 10 साल में कितना हो जाएगा?
9. Don't multiply this by 10. 2 to the power 100. इसका कंपाउंडिंग होगा. 2 to the इसका power 100. इसका कंपाउंडिंग होगा. That number will go more than 10 to 20,000. That is the times you are improving. Can you see the beauty of 2% improvement? हफ्ते में we are talking about 2% improvement. But इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? Consistency is the problem. And that is what we have to learn now. That is human behavior. नहीं, it's not human behavior. That is animalistic behavior. जो lack of consistency. Human अगर behavior अगर आप लाओगे, human behavior में consistency होता है. But because we are behaving like animals, इसलिए अपने में consistency नहीं है. Okay? क्योंकि वो animal, वो monkey अपने को परेशान करता रहता है. Percentage never count with the animals because percentage based on the humans only. I think so. Okay. We'll come to that Because point. percentage created by the human only, not by the animals and any No, we are not talking about who created it. We are talking about whom to apply it. Okay? We are talking about whom. Okay, that's Okay. So again, you get the effect of compound effect समझ में आया, लेकिन compound effect का beauty समझ में आया कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. हाँ? अब मान लो किसी ने कहा कि भैया आप you're talking about 2%, you know, week 1, there are 52 weeks, but I could not improve 2%. मैं 2% improve कर ही नहीं पाया every week. So out of 52 weeks, I could do it only 10 weeks. 10 वीक से मैंने इम्प्रूव किया है. तो 10 वीक में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया? 20%. एक्चुअली मोर देन 20%, बट 20% पकड़ लो, क्योंकि इधर जब 2% इम्प्रूव हो गया मतलब ये 102 का भी 2% होगा, उसका 2% होता जाएगा. दैट्स कंपाउंडिंग, राइट? तो दिस 20 हम लोग रफली कैलकुलेशन के लिए 20 बोल रहे हैं. Isn't this better than what I am today? Even though it is not 100%, लेकिन 20%, isn't it better than what I am today? I am a better version tomorrow than what I am today, right? So the point is, do not get scared of failures. Do not get scared of failures. ये क्लियर हो गया कंपाउंड इफेक्ट का? ओके. ठीक है. So now we talked about the compound effect, we talked about infinite mindset, and we talked about the monkey, rational thinker, and वो सब के बारे में बात किया. अभी हम लोग actually we will start talking about कि कैसे हम लोगों को अपना सेल्फ डिसिप्लिन का चार्ट बनाना चाहिए. ओके? कैसे? Now the first and foremost thing, जब हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन का चार्ट बनाएंगे हमारा, ओके, तो उसके लिए हमको क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? व्हाट इज माई रोल? ओके, कि मैं इन माई लाइफ व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट आई एम प्लेइंग? व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट आई एम प्लेइंग? ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट. ये एक रोल हो गया. दूसरा एक है आई एम अ चाइल्ड टू माई फैमिली. सो ये एक रोल हो गया. ओके. थर्ड वन वी कैन टॉक अबाउट इज माई एज अ सेल्फ पर्सन, सेल्फ खुद का. ओके. फोर्थ वन इज आई ऑल्सो हैव समथिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. So, जो भी रोल्स है, ओके, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए. आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू पुट. आप लोगों को आपके खुद के रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू विल डू. ओके, सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? रोल्स आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको गोल फाइंड करना है तो पहले रोल्स आइडेंटिफाई करो. अब एक बार रोल्स आइडेंटिफाई किए, द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू फाइंड इज कि ये रोल में व्हाट इज दैट आई वांट टू अचीव. इस रोल द्वारा मुझे क्या अचीव करना है?
एज अ स्टूडेंट आई वांट टू गेट एडमिशन इन क्या एमबीबीएस मान लो या एमबीए व्हाटएवर, जो भी आपका रोल है, यू नो, ये मेरा गोल हो गया, तो दिस इज गोल, ठीक है। So you will start putting goals. यहाँ पर अलग अलग you will start putting goals over here. As a child, I want मेरे पेरेंट्स ने ये अप्रिशिएट करना चाहिए, या करना चाहिए, वो करना चाहिए। As a self, मुझे देखना है कि मुझे अगले 1 साल में मुझे 10 किलो बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है, you know, whatever I want to put that over there. And in spirituality, I want to read this book. दैट बुक, यू नो, ये कंप्लीट करना है। ऐसे आप क्या करोगे, गोल्स डालोगे इधर। सो सबसे पहले आप रोल आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप गोल आइडेंटिफाई करोगे। नाउ इन गोल्स यू कुड हैव मल्टीपल गोल्स, जैसे लाइक एमबीबीएस या एमबीए मान लो, इट्स अ वेरी हाई लेवल गोल, राइट, क्योंकि इट कुड बी फार-फेच्ड। आज मैं शायद आई एम इन माई 12th स्टैंडर्ड, यू नो, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद में मेरे को 5 साल बाद ये डिग्री मिलने वाली, उसके बीच में मुझे क्या अचीव करना है, यू नो, या इसमें देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स यू वांट टू अचीव। पुट इट एवरीथिंग डाउन, एक बार ये पूरा लॉन्ड्री लिस्ट बना लो इसका। द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज प्रायोरिटाइज। बिकॉज मैं हर चीज नहीं कर पाऊंगा, राइट, आई कांट डू एवरीथिंग इन दैट एंटायर लॉन्ड्री लिस्ट। तो अब वो लिस्ट में से मुझे टॉप प्रायोरिटीज क्या है वो मुझे फाइंड करना है। यू नो, ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। मैं मेरा प्रॉब्लम शेयर करता हूँ जो आई यूज्ड टू फेस, एंड आप लोग अगर रिलेट कर सकते हो तो करो। अभी स्पिरिचुअलिटी में देयर आर मेनी बुक्स, बहुत बुक्स है। मेरा आदत क्या था कि मैं एक बुक लेता था पढ़ने के लिए। आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे एक बुक पढ़ना है, तो मैं एक बुक लेता था, फिर 2-4 दिन उसको पढ़ता रहा। 2-4 दिन में मैं मान लो 50 पेजेस पढ़ लिया। उसके बाद में फॉर सम रीजन मेरा गैप हो जाता था, आई वॉज नॉट एबल टू रीड इट। उसके बाद में अगर फिर से वो डिजायर मन में आया कि मुझे बुक पढ़ना है, आई हैव टू पिक अप अ न्यू बुक, एंड आई हैव टू पिक अप अ न्यू बुक, एंड आई हैव टू पिक अप अ न्यू बुक, एंड आई रियलाइज दैट आई वाज नॉट कंप्लीटिंग इवन अ सिंगल बुक। क्यों? बिकॉज मेरे पास ये लिस्ट ही नहीं था कहीं। सो आई हैड नोवेयर प्लान्ड कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। जब आप लिस्टिंग डाउन करते हो, दिस ब्रिंग्स डिसिप्लिन। लिस्टिंग डाउन ब्रिंग्स डिसिप्लिन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू अगर आप पॉडकास्ट देखो, यू नो, इफ यू वॉच पॉडकास्ट, एंड पॉडकास्ट में अगर आप ये बड़े बड़े यू नो फेमस पर्सनालिटीज या बिजनेसमैन और ये देखो, यू विल ऑलवेज सी ऑन देयर टेबल्स ऐसे व्हाइट बोर्डिंग रहता है, स्टिक नोट्स लगाया रहता है, यू नो। आई एम टेलिंग यू, मैं मेरे ऑफिस में आई हैव सीन दिस बिग सीईओज एंड सीआईओज, वो लोग जब मीटिंग में आते हैं ना, तो हमारे जैसे लाइक यू नो क्या बोलते हैं, फ्यू मैनेजर्स या लाइक यू नो जूनियर डेवलपर्स वगैरह, वो अपना हाई-फाई मोबाइल और आईपैड्स लेके जाते हैं, और वो जब आता है सीईओ, वो डायरी लेके आता है, लिखने वाला डायरी, बिकॉज दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। लिस्टिंग डाउन, पढ़ना, देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जब तक ये नहीं करोगे ना, देन यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। डिसिप्लिन के लिए लिखना बहुत जरूरी है, आपको ये लॉन्ड्री लिस्ट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस लॉन्ड्री लिस्ट, रिमेंबर दिस, ओके। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो रोल्स, गोल्स एंड प्रायोरिटीज, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, आपको मार्केट में जाके 400 रुपए का ये ऐसा बोर्ड खरीदना है, ओके। यू गेट दिस बोर्ड इन 400 रुपीज, बाय अ बोर्ड फ्रॉम द मार्केट। फिर ऑल दैट थिंग स्टार्ट व्हेन यू सी इट, व्हेन यू सी इट, राइट। सो ये बोर्ड जब आंखों के सामने रहेगा ना, तो ये जब गोल्स ये सब जो लिखे हैं बार बार जब दिखेंगे ना, तो डिसिप्लिन बना रहता है।
That is why that visual effect is very important for the board, and that is why the board should be there in that room जहाँ पर आप हमेशा सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो. Put the board in that room. Okay, so this is the first thing you have to do. Now certain principles, we are going to follow. Okay, अभी I have taken some Japanese principles, which I follow. One is Ikigai, this very famous book. Okay, उस book का इस वर्ड का मीनिंग है सेट गोल्स इन योर लाइफ. शॉर्ट गोल्स, सेट शॉर्ट गोल्स इन योर लाइफ. सेकेंड इज काइजन. काइजन अगेन जापानीज वर्ड है. काइजन का मीनिंग होता है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स. मुझे ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं करना है लाइफ में, कर भी नहीं पाऊंगा. आई शुड फोकस ओनली ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट. कि कल मैंने जो किया था आज मुझे उससे थोड़ा सा बेहतर करना है. Okay, I will focus only on small improvements. Okay. The third one I talk about is getting things done. Getting things done. ये एक माइंडसेट हम लोगों को डेवलप करना है कि जो भी एक्टिविटी मैंने अंडरटेक किया है मुझे उसे फिनिश करना है. किसी भी कीमत में फिनिश करना है. आधा नहीं छोड़ना है. एट एनी कॉस्ट. At any cost, I will not leave it. किसी भी तरह से I will get things done. Okay. Sometimes people say अगर उसमें क्वालिटी नहीं तो क्या मजा है. Don't worry about the quality aspect of it. पहले उसको खत्म करने की कोशिश किया करो. Over a period of time क्वालिटी आता जाएगा. But वो mindset डेवलप करो. And finally, it is the never give up attitude. Never give up. Now why ये never give up attitude क्यों important है, I will tell you. Okay. आप लोग जब ये implement करना चालू करोगे तब क्या होता है, कभी कभी जब हमारा उत्साह होता है, when we start it, so you will see in the initial days एकदम perfectly सब करते हो. फिर अचानक for some reason कहीं छुट्टी पे चले गए, you went out of station वगैरह, तो बोर्ड तो नहीं लेके जाओगे उधर. फिर उधर से जब घर वापस आ जाते हैं देन वी सी अरे तब का लिखा हुआ है, अब इतना गैप हो गया, छोड़ दो. वो नहीं करना है. वो नहीं करना है. यू हैव टू रीस्टार्ट. यू हैव टू रीस्टार्ट. दैट नेवर गिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. in the English there is a saying that falling is not a failure, but not rising after the fall is a failure. Falling is not a failure, but not rising after the fall is a failure. छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है ना. बट गिरने के बाद वो अगर सोचेगा क्या फायदा चलने का, मैं तो गिर जाता हूँ, then he will never walk. He falls, he stands. He falls, he stands. That never give attitude, never give up attitude जो है very important. अपने को लाइफ में वो करना है. It does not matter कि 6 महीने बाद तुमको याद आ गया, अरे तब 6 महीने पहले मैंने ये चालू किया था, बंद हो गया, वापस restart. Even after it is 6 months, even after it is 1 year, restart. Any point अगर आपको ये आता है, restart it from that point. Very important. क्योंकि उसका इफेक्ट पॉजिटिव ही आएगा. It is only a positive effect that it will give. So we have to rise again and again and again and again, from that fall. जब हम लोग ऐसा करेंगे तभी हम लोग इम्प्रूव करेंगे. लेकिन अगर हम लोग फॉल के बाद अगर बैठ गए तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. ओके, सो नेवर गिव अप एटीट्यूड. सो ये प्रिंसिपल्स इसको याद रखो. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्लॉट द चार्ट. ओके, सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, I make a column of list of tasks or activities from which I am struggling. Okay, जो मुझे अचीव करने हैं, and I put it over here as 7 days. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Okay. अब मान लो अगर मैंने कोई एक टास्क डाला कि मुझे रोज एवरी डे आई वांट टू रीड. ओके, सो मैं अगर मान लो रीडिंग एक एक्टिविटी डाला,
I put an activity called as reading. Now I say my goal क्या है कि every day I want to read say 30 minutes. 30 minutes का मुझे रोज रीडिंग करना है, जो भी बुक है, you know. So here 30 minutes, here 30 minutes, like that. Now I could be reading 20 minutes on this day, I could be reading 40 minutes. What I also do is, in my personal this thing, in the goal section, what I do is 7 into 30 is 210 minutes. I put a target for myself as 300 minutes. Okay. When I put a goal of 300 minutes, little more than what I want to achieve, then I see to it कि अगर मैंने इधर 30 minutes पढ़ा है and मान लो इधर किसी वजह से I could not read it 15 minutes, this third day I know I want to read more. I know I want to read because मेरा target नहीं achieve होगा. So ये जो है, if you notice one thing over here, this is a finite game. मैंने क्या किया, इसको फाइनाइट गेम बना दिया. फाइनाइट गेम में क्या रूल है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है मुझे, आई नो माई प्लेयर्स, राइट, आई नो माई कंस्ट्रेंट्स, ये फाइनाइट गेम हो गया. लेकिन रीडिंग इन इटसेल्फ ये एक्टिविटी जो है वो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट है, तो वो इनफाइनाइट है. सो इनफाइनाइट को आप फाइनाइटली अगर खेलोगे तो यू कैन स्टिल इम्प्रूव. सो फाइनाइट गेम जरूरी है, बट फाइनाइट गेम इट्स नॉट लाइक अगर 300 कर लिया मतलब हो गया, मेरी जिंदगी का पूरा रीडिंग खत्म हो गया. That is not what my objective is. But it is for that week it is finite. But for my life it is not finite. I want to improve more and more, more and more. हाँ, ये clear हो गया? So now like this, if I put reading, इसके बाद में I can put another activity. You know, मान लो going to gym. कि मुझे gym जाना है, okay? तो मैं गोल डालूंगा कि out of 7 days मुझे 6 days कम से कम जिम को जाना है. तो आई चेक कि फर्स्ट डे को मैं गया, सेकेंड डे को छुट्टी मारा, थर्ड डे सो गया, फोर्थ डे आई वेंट, देन आई नो दैट अदर डेज आई हैव टू गो एट एनी कॉस्ट बिकॉज एनीवेज आई एम नॉट मीटिंग माय गोल. यू सी क्या होता है जब आप ये लिखना चालू करते हो, दिस विल हिट योर आईज. यू नो, हम लोग इसको बार बार देखते हैं. तो अगर मैं ये नहीं लिखता हूं, माई नेचुरल टेंडेंसी इज टू स्लीप इन द मॉर्निंग. And I feel it's okay today if I don't go to the gym, and it's okay tomorrow I don't go to the gym, and it's okay I don't go to the gym the third day. But when it is on the chart, I start seeing, my God, how bad I have become in my discipline. You know, एक ego hurt करता है वो, and that ego, you know, that ego motivates you to start doing it. You getting this? So now here you start putting your activities. You know, you put whatever, you know, in spirituality I talk about, okay, chanting. Now I have taken a vow of 16 rounds chanting. All initiated devotees do. Every one of us chants 16 rounds. But what I do is, as a goal, put your goals and start documenting this. And इसीलिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हमेशा आपके वो रूम में रखो जहाँ पर you can see it on a daily basis. Not daily basis, दिन में 10 बार देखना चालू करो. सोने से पहले एक बार अपडेट करो कि मैंने आज क्या किया है. यू नो, दैट इज द रिफ्लेक्शन दैट यू आर डूइंग. सोने से पहले जब हम लोग बोर्ड को देखते हैं अगेन, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफस्टाइल पे कि आई हैव डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस. दिस इज दैट प्लानिंग, यू नो. सो ये सब चीजें जो है, दिस आर इम्पोर्टेंट. ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, लाइफस्टाइल के इसमें, बिकॉज विदाउट डूइंग दिस यू कैन नॉट इम्प्रूव. लेट मी टेल यू, इस दुनिया में कोई भी जादू की छड़ी नहीं है. यू नो, ओनली हैरी पॉटर हैड वन विच डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि उसने भी फेंक दी थी मूवी के एंड में, राइट. सो नाउ दैट इज नॉट अटेनेबल. बट देर इज नो मैजिक वॉन्ड इन दिस वर्ल्ड अदर देन हार्डशिप्स. मेहनत लेनी पड़ेगी. We have to work hard for ourselves. That is what discipline is all about. Okay? But discipline को कैसे किया जाए, that whole process, understanding that process is very important.
एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट. मोटिवेशनल कंसेप्ट क्या है? कंपाउंडिंग इफेक्ट. कि आई नो अगर मैं सिर्फ 2% रोज इंप्रूव करूंगा अपने आप को, आई विल सी अ मच बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ आफ्टर 1 year, 2 years, 10 years. आई वॉन्ट टू सी दैट. एंड कितना इंप्रूव करना है मुझे? सिर्फ 2% इंप्रूव करना है. नॉट अ बिग डील. 2% इज नॉट अ बिग डील, राइट? आई शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम प्लेइंग अ इनफाइनाइट गेम. तो कभी मैं डाउन हो गया, आई नो आई ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी. बाउंस बैक, यू नो. सो डोंट गेट मोरस. कभी डिप्रेशन में मत जाना. इट्स नेवर द एंड ऑफ योर लाइफ. It's never the end of your life. Never go in depression, okay? Because there is always an opportunity to bounce back, okay? There is always an opportunity. I will come, okay? When I complete, we will have questions, okay? There is always an opportunity to bounce back, okay? हाँ? कितना हो गया? 11:40 तक किसने बताया? 12 तक है. नहीं, उनको बोलो यू नो वी हैव टू चैंट. उनको बोलो हम लोग 12 बजे नॉर्मली ये करते हैं. चाहिए तो उनको बोलो 10 मिनट पहले ये करेंगे. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू डू, ओके, एंड वी आर गोइंग टू चैंट 1 round, ओके. नाउ व्हाई दिस चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू. Krishna says in Bhagavad Gita, Kalosmi. Krishna says, I am time. Okay, I am time. Time I am. When we take the holy name of Lord, it is a form of meditation. मेडिटेशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं. एक इफेक्ट है ये होता है कि जब हम लोग भगवान के नाम पे मेडिटेट करते हैं, एक तो मर्सी आता है ऊपर से, भगवान की कृपा आ जाती है. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. सेकेंड इफेक्ट ये होता है कि मान लो नाम चैंटिंग में अगर ध्यान नहीं गया तो ये प्लानिंग में ध्यान जाता है. सो यू आर स्टिल रिफ्लेक्टिंग, यू आर स्टिल प्लानिंग. दिस इज ऑल्सो बेटर. सो चैंटिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. ओके, कैसे करना चाहिए? वेलकम ओवर देयर. ओके, नाउ मेडिटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट आई विल टेल यू, यू नो, सम चैलेंजेस दैट वी हैव, एंड आई विल टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट. सो फ्यू डेज बैक आई हैड अ ड्रीम, एंड इन दैट ड्रीम आई सॉ माई सेल्फ कि मैं गया था स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जाके मेरा अपॉइंटमेंट था इंदिरा के साथ. सो इंदिरा के साथ मैं बैठ गया था डिनर के लिए. एंड व्हेन आई वाज सिटिंग विद इंदिरा ऑन द डिनर, आई टोल्ड इंदिरा दैट इंदिरा, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर योर पोजीशन. क्योंकि बाकी युगों में जो लोग बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद इंद्र पद हासिल कर सकते थे, इन कलियुगा इट इज सेड दैट जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, people can get so much pious credit and they can become Indra इसी लाइफ में. सो इंदिरा, हमारे धरती पर बहुत लोग चैंटिंग करते हैं, आई थिंक तुम्हारा पोजीशन जाएगा. सो इंदिरा स्टार्टेड स्माइलिंग एट मी. ही सेड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो आई सेड, इंदिरा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. पहले के ज़माने में जब तपस्या करना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था, शांत बैठना पड़ता था. लेकिन कलयुग में ब्रह्मा जी ने कली संतन उपनिषद में कहा है नारद मुनि को, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. ही टोल्ड, यू नो, ही सेड, कलयुग में यू कैन चैंट एनीवेयर, एनी हाउ, एनी टाइम. सिर्फ तुमको चैंट करना है, मतलब बैठने की भी जरूरत नहीं है, किसी शांत कोने में बैठने, सिर्फ तुमको नाम लेना है. दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी टोल्ड, यू नो. सो आई टोल्ड इंदिरा, नाउ यू कांट इवन सेंड अप्सरास. आप कौन सी अप्सराओं को भेजोगे तपस्या तोड़ने के लिए? इंदिरा टोल्ड मी, आई ऑलरेडी सेंड. आई सेड, आई हैव नेवर सीन. यार, मैंने तो मेरे घर में देखा, कोई अप्सरा तो थी नहीं. कौन से अप्सरा की बात कर रहे हो? इंदिरा सेड, ये वो अप्सरा है जो कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा, एंड दैट इज, इधर गया मेरी अप्सरा, एंड दैट इज आवर मोबाइल्स. Our mobiles are our distractions. और ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है कि इंसान इसको छोड़ ही नहीं पा रहा. मतलब बाथरूम तक आदमी इसको लेके जाता है. Even if person, you know, even if people are passing stool and urine, still हाथ में अप्सरा होती है, बस उसी के ऊपर ध्यान चलता रहता है. Can you imagine the amount of attachment we have developed with our mobiles? हम लोग बोलते हैं, you know, एकादशी जब हम लोग करते हैं तो some of us we don't even drink water on एकादशी.
लेकिन मजाल है कि कोई बोलेगा कि उस दिन मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये एकादशी बहुत डिफिकल्ट, ये अप्सरा दी है इंद्राणी, और ये सबके हाथ में डाल के रखी। नाउ इसको दूर रखना है जपा के वक्त। जब मेडिटेशन करोगे, कीप हर अवे, because this distraction will not help you in this discipline. So try to keep your mobiles aside, switch off, and that is the reason हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जब आप करते हो, जो मेडिटेशन आप करते हो, do it early morning. अर्ली मॉर्निंग में किसी रूम में मोबाइल को चार्जिंग को रखने दो, आराम से चार्ज हो तुम, एंड मैं अपना जपा करूँ, नो डिस्ट्रैक्शन, नो वन एट दैट पॉइंट विल इवन कॉल यू, राइट? सो दैट इज हाउ वी शुड मेडिटेट. Okay. The other thing is, हम लोग अपने जिंदगी में भी प्ले सो मेनी रोल्स, राइट? सो समटाइम्स लोग हमको बोलते हैं कि प्रभु जी आप ये सब कहते हो, लेकिन मेरा जॉब होता है, मुझे 10 घंटा काम करना पड़ता है, उसके बाद में मेरा फैमिली है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पूरे माँ बाप है, ये है वो है, यू नो, मेरा स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ाई है, दिस दैट 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 दैट, यू नो, पूरा लिस्ट रहता है. तो सबके एंड के लिस्ट में हम लोग भगवान को डालते हैं कि अगर और किसी से समय बच गया तो फिर भगवान तेरे लिए, काइंड ऑफ, यू नो, लाइक दैट वी पुट इट. What I suggest to you is, because Krishna says kalos me, you know, I am time, you first take the name of God. इससे क्या होगा? He controls time. When he controls time, so how does Krishna control time? मुझे जो काम करने के लिए 10 घंटे लगते हैं, he will readjust that work that I will be able to do the same work in 8 hours. मतलब उन एक्टिविटीज की जो विघ्न है, उन विघ्नों को वो सब निकाल देगा. So automatically I will get time. Automatically I'll start get time. See, I am telling you again, मैं मेरा लाइफ का एग्जांपल देता हूँ. 2001 में I started came into Krishna consciousness. Since 2001 I am chanting 16 rounds. Since 2001 I am, you know, giving presentations, preaching and all those things. I am reading books वगैरह सब कर रहा हूँ. Okay. एंड ऐसा भी नहीं कि मैं निठल्ला हूँ कि आई डोंट हैव वर्क और ऑल दोस थिंग्स. आई एम वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, एंड यू नो IT इंडस्ट्री इज सच अ हॉरिबल प्लेस टू वर्क, यू नो. वहाँ पे कोई वर्क एथिक्स नहीं होता है, तो मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, राइट? एंड आई ऑल्सो हैव अ फैमिली. सो सब कुछ है एंड आई एम स्टिल एबल टू मैनेज इट. हाउ? ओनली बाय गॉड्स ग्रेस. क्योंकि कृष्णा एडजस्ट, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं. He will adjust it perfectly अगर तुम करना चाहो तो. एंड तुम वो नहीं करोगे तो कृष्णा क्या करते हैं? टाइम एक्सपांड्स, यू नो. कृष्णा बोलेगा अच्छा चल मेरे लिए 2 घंटा नहीं है, बट 24 घंटा है ना तेरे पास, तो मैं तेरा काम ही ऐसे बढ़ा देता हूँ कि वो 2 घंटा फिर काम में लग जाए. देन यू सी, अरे मुझे टाइम नहीं मिलता, तुम्हें कैसे टाइम मिलता है? बिकॉज फॉर मी एडजस्ट ना, फाइन ट्यून कर देते हैं. तुम्हारे लिए फिर वो फाइन ट्यून वो एक्सपांड करके रख देते हैं. सो तुम ये करना चालू करो, you'll start tuning it again. कालोस में. Remember, Krishna, God can control time because He is time personified. So when you seek His mercy, you will start seeing everything falls in place. So first pray to Him. Okay? I'll stop over here. Sorry, actually, I had to rush little bit through this course, but next time we will start on time. You know, when we start on time, तो थोड़ा time होगा अपने पास discuss करने के लिए, and we can take this further. But now we will chant one round. Please. It's very important. हम लोग माला पे राउंड करेंगे.